Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on theme 11 of history, rebels and the Raj. We did talk about few aspects of revolt, कैसे revolt start हुआ था, उसके बाद कैसे पैटर्न, क्या पैटर्न में rebellion continue किया जाता था, what were the lines of communication. Then we also talked about the leaders and the followers of this revolt, and then we talked about the rumors and prophecies जो इस टाइम पे spread हुए थे, which played an important role in somewhere, you can say, bringing the people together and making this revolt or making this mutiny into a revolt. Okay, so this is what we have already done till our previous classes. Today we need to talk about Awadh. अवध जो है was one of the most important area जहाँ पे ये रिवोल्ट जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ था, बहुत लंबा चला था. And when we'll talk about Awadh, we'll see many other aspects which were common in many other areas, जिसके कारण ये जो रिबेलियन है ये ऐसे स्प्रेड हुआ और इसमें इतने सारे सेक्शन जो है इंडियन सोसाइटी के वो इन्वॉल्व हुए. So let us now start and talk about Awadh. Now, as the topic suggests, a cherry that will drop into our mouth one day. This was the statement that was given by Governor General Lord Dalhousie in 1851. And whatever he said became actually truth after 5 years. यानी 1856 में फाइनली जो अवध है वो पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गया था. This statement clearly says that they know that Awadh is a place which is very fertile, very important from point of view of trade and many other aspects, and that is why they are calling it a cherry, and they are saying that one day we will have control over it. Okay, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू वो यही बताना चाह रहे हैं. एंड ये जो अवध को अपने अंदर लिया गया था, दिस वॉज थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, और यू कैन से दिस कॉन्क्वेस्ट एक्चुअली हैपेंड इन स्टेजेस. तो अब क्या स्टेजेस में थे ये भी हम देखते हैं. सब्सिडरी अलायंस जो है इट वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध in 1801. Now keep this date in your mind. अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस जो है इम्पोज कर दिया था ब्रिटिश ने, कब? 1801 में. ठीक है. अब let us first talk about what exactly is subsidiary alliance. Now you can see this box. subsidiary alliance स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, 1798 में. इसमें इन्होंने बोला था जो एरिया ब्रिटिश के साथ अलायंस कर रही है, जो एरिया ये चीज मान रही है कि हाँ ब्रिटिश जो है वो फॉर्मली वैसे हमारे ऊपर रूल करेंगे या फिर हम जो उनके अकॉर्डिंग रूल करेंगे एंड वी विल एक्सेप्ट दिस अलायंस, उनको कुछ कंडीशंस माननी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस. वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं. So if we talk about these terms and condition, as you can see, the first one that they are talking about here is that British will be responsible for protecting their ally from external and internal threats to their power. यानी कोई भी बाहर से या अंदर से आप पे अटैक करेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको कौन प्रोटेक्ट करेंगे? ब्रिटिश. सेकंड इन्होंने बोला ये जो टेरिटरी है जिन्होंने सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करेंगे वहां पे ब्रिटिश आर्म जो सोल्जर्स है, कॉन्टिजेंट है, वो ही क्या होंगे? स्टेशन होंगे. ठीक है. सो दैट मीन्स अ ब्रिटिश आर्मी कंटिजेंट जो है वुड बी स्टेशन एट द टेरिटरी of the, you can say, region which has, or the ruler who has accepted the alliance. उसके बाद हम देखेंगे ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने एक्सेप्ट किया है वो उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज जो है वो कौन प्रोवाइड करेंगे? वही स्टेट वाले. यानी
कि कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रिटिश का आ गया है, पर उसको वेजेस देने का, उनका जो भी उनको रिसोर्सेस चाहिए है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए खर्चा कौन करेगा? जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया है। और ये जो जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया है, वो विदाउट ब्रिटिश परमिशन किसी और रूलर के साथ कोई भी और एग्रीमेंट, कोई भी और ट्रीटी साइन नहीं कर सकते, और ना ही वॉर में engage हो सकते हैं without the permission of British. That means they are asking that if you accept the subsidiary alliance, you will have to accept these 4 terms and conditions. ठीक है? On somewhere they many a times, if the ruler did not accept it, otherwise they forcefully ask them to accept by somewhere you can say warning them, threatening them that will somehow attack you. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? कमिंग बैक टू अवध, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सब्सिडरी अलायंस अवध ने साइन किया था या अवध के ऊपर किया था 1801 में। इसके हिसाब से हमने पहली चीज क्या बोली थी कि नवाब जो है उसको अपनी मिलिट्री फोर्स डिस्बैंड करनी पड़ेगी, और उसकी जगह कौन आ जाएंगे? ब्रिटिश वाले जो ट्रूप्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे जो सारे पॉइंट्स थे उनके हिसाब से अवध को काम करना पड़ेगा, अवध के नवाब को। और इसके अलावा एक रेजिडेंट होगा। Who is a resident is a representative sent by the British East India Company। ठीक है, और ब्रिटिश रूल जो है वो ब्रिटिश रूल ही उसको, मतलब गवर्नर जनरल के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में वो आएगा, और वो वहां पे उनके कोर्ट में बैठेगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा तो उनकी एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये देखो, यानी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू वो बोल तो रहे हैं कि हम एक्चुअली में इनके अलाय हैं, हम इनके साथ मिलके एक तरीके का चीज कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन कर रहे हैं, और हम लोग जो है एक दूसरे के लिए समवेयर हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी आर्मी रखेंगे, और पूरा उसके रेजिडेंट रहेगा, उसके हिसाब से चीजें चलेगी। बट एट द बैक ऑफ द माइंड अंडरस्टैंड द पॉइंट, जो अब नवाब है उसके पास पहले तो अपने फोर्सेस नहीं है, क्योंकि उसके फोर्सेस तो डिसबैंड कर दिया, और फोर्सेस किसके हैं? ब्रिटिश के हैं। तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज्यादातर किस पे डिपेंड रहेगा? अब ब्रिटिश पे। ठीक है, अपने किंगडम के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी उन पे डिपेंड हो रहा है। इसके अलावा जो उसके, अगर सपोज उसके एरिया में कोई रिबेलियस चीफ्स है, कोई तालुकदार है, उन पे भी उनका उसका जो कंट्रोल है नवाब का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? नवाब के पावर्स आर रिड्यूसिंग। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब मीनवाइल इतनी सब्सिडरी अलायंस होने के बाद भी ब्रिटिश के माइंड में यही था कि वी नीड टू हैव मोर कंट्रोल ओवर द टेरिटरी ऑफ अवध। ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। पर हम क्यों चाहते हैं कि हम अवध पे कंट्रोल कर लें? क्योंकि अवध एक बहुत फर्टाइल एरिया है, ये यहाँ पे इंडिगो और कॉटन बहुत अच्छी तरीके से उगता है। ये जो रीजन है, यहाँ से जो अपर इंडिया है, नॉर्थ इंडिया जो है, उसके लिए मेन मार्केट है, यहाँ पे ट्रेड भी बहुत अच्छा चलता है। तो हर तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत अच्छी जगह है। एग्रीकल्चर गुड, मार्केट इज अवेलेबल, सो दे वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर दिस एरिया। अब क्या हुआ? अर्ली 1850s में धीरे धीरे बहुत सारे एरिया पे कंट्रोल करने लग गए थे ब्रिटिश। ठीक है, जैसे कि मराठा लैंड्स को अपने अंडर कर लिया था, दोआब वाले एरिया को, इवन कर्नाटक, पंजाब और बंगाल। तो अब ये चाह रहे थे कि अगर हम अवध को भी ले लें तो हमारे पास बहुत बड़ा एक जो इंडिया का रीजन है वो हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? 1856 में दे फाइनली थॉट ऑफ टेकिंग होल ऑफ अवध ऑल्सो अंडर देम। ठीक है, एंड ये बंगाल के ऊपर भी काफी एरिया पे ये कंट्रोल कर चुके थे। अब हम आ जाते हैं कि जब
यहाँ से फाइनली इन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया, ठीक है, 1856 में ब्रिटिश ने। तो उसके बाद क्या हुआ अवध में? नाउ द स्टेटमेंट इज द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। हियर वी विल सी कि डलहौजी ने जब अनेक्सेशन किया था यहाँ पे, तो बहुत जगह पे उन्होंने किया था, बट सबसे ज्यादा हम देखेंगे अवध जो इम्पोर्टेंट जगह थी वहां पे जब अनेक्स किया तो बहुत बड़ा एक तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। कैसे? यहाँ पे रूल कर रहे थे नवाब वाजिद अली शाह। इनको बोला गया कि आप जो है यू आर नॉट रूलिंग नाइसली, सो दे सेड दैट यू आर एक्चुअली नॉट गवर्निंग नाइसली and they said we want you to leave your throne, okay, because you can say because you are not governing properly या on the excuse of misgovernance, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उन्होंने किसने जो ब्रिटिश है डलहौजी, उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को डीथ्रोन कर दिया, यानी उनकी राजगद्दी से उनको हटा दिया गया, उनको कैलकटा एग्जाइल कर दिया गया, उनको कैलकटा भेज दिया गया। और उन्होंने बोला कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू आर मिस गवर्निंग, यू आर नॉट गवर्निंग प्रॉपरली, और सब्जेक्ट्स आर नॉट हैप्पी विद यू। दिस इज व्हाट द ब्रिटिश सेड एंड इट वाज टोटली रॉन्ग। एंड समवेयर हम बोल सकते हैं ब्रिटिश ने ये गलत अज्यूम किया था कि वाजिद अली शाह जो वो एक अनपॉपुलर रूलर है, जबकि ही वॉज अ वेरी पॉपुलर, वेरी लव्ड रूलर एंड पीपल एक्चुअली लव्ड हिम वेरी मच। एंड व्हेन दे न्यू अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, और जब सबको पता चला कि उनको थ्रोन से हटा दिया गया है, पीपल वर रियली अपसेट। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि उनको बोला गया है कि आपको कैलकटा जाना है, तो जब वो अवध से निकले एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज अवध के अराउंड, व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलव्ड लखनऊ, बहुत सारे लोग तो उनको फॉलो करते रहे, कहाँ तक? कानपुर तक। और फॉलो करते करते वो लोग क्या कर रहे थे? ऑल ऑफ देम वर सिंगिंग सॉन्ग्स, और ये जो सॉन्ग्स गा रहे थे दीज वर समवेयर वेरी वेरी सैड, जहाँ पे ये मतलब जैसे बहुत दुखी है, मोर्निंग जैसे, ठीक है, मतलब बहुत लोग दुखी थे कि अब जो है हमारा नवाब जा रहा है। इतना ग्रीफ था और नवाब को एग्जाइल भेजा गया था, इसके लिए इतना लोग अपसेट थे, इतना डिप्रेस थे, इतना उनको बुरा लगा था दैट इवन फ्यू ऑफ देम रोट दैट द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैज लेफ्ट लाइफलेस। ठीक है, मतलब एंड देयर वाज नो स्ट्रीट और मार्केट एंड हाउस which did not wail out the cry of agony with separation of जाने आना। मतलब उनको बहुत ज्यादा दुख था कि उन्होंने कि जो उनका राजा है उनको वहां से हटा दिया गया है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द रूलर हु एक्चुअली वॉज लाइक्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स, बिकॉज ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द सब्जेक्ट्स। तो एक फोक सॉन्ग भी है, फ्यू ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड आई थिंक इन वन ऑफ योर हिंदी क्लासेस ऑल्सो, हिंदी बुक्स में भी एक इन पे पोयम लिखी हुई है कि किस तरीके से जब ये जा रहे थे तो पीपल वर सिंगिंग सॉन्ग्स इन समवेयर मतलब शोइंग हाउ सैड दे वर, और ये बोल रहे थे कि जो इंग्लिश है वो आए और उन्होंने कंट्री को ले लिया। ठीक है, अंग्रेज बहादुर है, मतलब हम दे आर से मुल्क ले लो, मतलब दे टुक अवे द कंट्री। Similarly, this box is also given. You can see कि noble and peasant all wept together because the ruler is leaving the motherland. The world wept and wailed. The chief has bidden adieu to his country and gone abroad. मतलब वो नवाब चले गए, people were very very upset, very sad. और ये जो इमोशनल अपहीवल है, मतलब जो लोग इमोशनली अभी तो सबसे ज्यादा दुखी थे कि कैसे जो हमारे नवाब है उनको यहाँ से भेज दिया गया और अब हमारे ऊपर जो फॉरेनर है या जो फिरंगी है, जो इंग्लिश है वो रूल करेंगे। तो इसके साथ साथ मटेरियल लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ था।
मटीरियल लॉस से क्या मतलब है हमारा, हमें पता है नवाब्स होते हैं या बहुत बड़े जो एम्परर वगैरह होते हैं उनका कोर्ट होता है, उनके कोर्ट में साथ में क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, डांसर्स हो, पोएट्स हो, आर्टिजन्स हो, कुक्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, मतलब हर तरीके के लोग जो वहाँ पे काम करते थे उनका भी तो काम छूट गया. So lot many people actually lost their jobs and people lost their livelihood and they were really upset with whatever was going on, which was not only you can say कि सिर्फ ये नहीं था कि राजा गए हैं उसका तो दुख है ही, बट इसके अलावा जो लोग हैं उनका बहुत लोगों का काम भी छूट गया था एंड पीपल वर actually you can say somewhere feeling very bad and were also materialistic at loss because they lost their livelihood. जिस तरीके से वो earn करते थे वो भी उनकी छूट गया था. So people were actually very very upset. यहाँ पे हम देखेंगे इसके साथ साथ फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अब इसमें क्या हुआ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नवाब चले गए तो लोगों के काम छूट गए, पर बहुत कुछ और चेंज होगा. अवध के जो लोग हैं, चाहे वो हम देखें प्रिंस हो, तालुकदार हो, पीजेंट हो या सिपाही हो, सबके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई थी फिरंगी राज आने के बाद. फिरंगी राज आने के बाद यानी कि रूल ऑफ ब्रिटिश आने के बाद दे थॉट कि जो हमारा पुराना सिस्टम है जो इतने सालों से चला आ रहा है, जो हमारे नवाब है, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारा हम आगे देखेंगे लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, सारी चीजें क्या हो गई है, खत्म हो गई है. जो हमारे ओल्ड रिस्पेक्टेड डियर और डियर वंस और इतने सालों से जो हमारी चीजें चल रही है वो सारी की सारी क्या हो गई है, ऑल आर नाउ बेसिकली पुट टू एन एंड बाय द ब्रिटिश. पूरा यहाँ पे हम देखेंगे बहुत इमोशंस, बहुत इश्यूज, लोगों के ट्रेडिशंस, उनका जिसकी तरफ लॉयल थे, ये सारी चीजें जो है सब पे इफेक्ट पड़ा था. और इसीलिए ही ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये इतना बड़ा हुआ था. और स्पेशली अवध में, अवध हम देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर रेजिस्टेंस हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट. बहुत लोग जो है वो क्या थे, एकदम टोटली अगेंस्ट थे विथ वॉट एवर हैज हैपेंड इन अवध. अब सबसे पहले जब अनेक्सेशन हुआ और हम देखेंगे कि जो नवाब है उनको हटा दिया गया, इसके साथ साथ और क्या हुआ था, जो तालुकदार हैं उनका भी पावर कम हो गया था. कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्या था, जब नवाब थे तो तालुकदार के पास पावर था बहुत. उन्होंने कंट्री साइड में इनको एस्टेट्स दे रखे थे. तालुकदार के पास अपने फोर्ट्स भी थे जो वो लोग कंट्रोल करते थे, मतलब उनके पास ही रहेगा और उनकी फैमिली के पास ही रहेगा. फ्रॉम मेनी जनरेशंस इट कंटिन्यू टू बी विद दीज तालुकदार्स ओनली. यानी इनके पास किले थे, इनके पास बड़े बड़े लैंड थे जो इनके पास ही रहते थे. तालुकदार्स को ब्रिटिश के आने से पहले ये काम दिया जाता था कि आपको आर्म फोर्सेस मेंटेन करने हैं, आपको फोर्ट्स बनाने हैं, और जब भी हमें जरूरत हो ऑब्वियसली उनको वो आर्म फोर्सेस प्रोवाइड करने होते थे नवाब को. और उनको और बहुत तरीके से फ्रीडम होती थी कि वहां पे किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है. ठीक है, बट तभी होगा जब तक आप नवाब को अपना मेन मतलब रूलर मान रहे हो और उनके हिसाब से ही चल रहे हो. ठीक है, और जो ताल्लुक है, जितना लैंड आपको दिया गया है उसका रेवेन्यू भी आप टाइम पे दे रहे हो. तो कुछ कुछ तालुकदार तो इतने बड़े थे कि हम देखेंगे कि उनके पास लगभग 12,000 फुट सोल्जर्स होते थे, और जो छोटे मोटे तालुकदार होते थे उनके पास भी एटलीस्ट 200 फुट सोल्जर्स तो होते ही थे. मतलब बड़े वाले तालुकदार्स आर सो यू कैन से पावरफुल और वर सो रिच दैट दे हैड अराउंड कंट्रोल ऑफ 12,000 फुट सोल्जर्स, whereas the small ones had about 200. ब्रिटिश जो है, अब ब्रिटिश का जब रूल आया
तो वो अब इस चीज को टॉलरेट नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे तालुकदार के पास पावर नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने नवाब की आर्मी डिसबैंड कर दी तो वो कहां से तालुकदार की आर्मी को टॉलरेट करेंगे। जैसे ही उन्होंने ब्रिटिश ने अनेक्स किया अवध को, उन्होंने तालुकदार को डिसआर्म कर दिया और उनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके किलों वगैरह को तोड़ दिया, उनके पास जितने भी आर्मामेंट्स थे सब कुछ उन्होंने ले लिए। फिर इन्होंने बोला चलो अब क्या करें, हमें हमारा रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा अगर हम तालुकदार को हटा रहे हैं, पर हमें तालुकदार को हटाना है, हमें इनका पावर जो है वो उसको कम करना है। तो इन्होंने जो नया रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट किया उसको हम बोलते हैं समरी सेटलमेंट। ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। अब ये बोल रहे थे कि एक्चुअली में जो तालुकदार है ना वो इंटरमीडिएरी है। ठीक है, ये कोई इनका परमानेंट उस लैंड के ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए, या ये परमानेंट लैंड की क्या नहीं है, ओनर नहीं है। ठीक है, सो आफ्टर दिस द ब्रिटिश थॉट दैट तालुकदार जो है वो इंटरमीडिएरीज है, उनका लैंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बोल रहे हैं कि वो लैंड के ऊपर उन्होंने फोर्सफुली कब्जा कर लिया है, तो हम जो नया समरी सेटलमेंट ला रहे हैं इससे हम क्या है तालुकदार को हटा देंगे, हम वी विल नॉट गिव देम एनी पावर, एंड हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली टैक्स किससे कलेक्ट करेंगे, हम डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फार्मर्स, द कल्टिवेटर्स। ठीक है, तो ये जो समरी सेटलमेंट आया था ये इन्होंने लगाया, ये इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पे इसके थ्रू इन्होंने तालुकदार्स को उनके पोजीशन से हटा दिया। हमारे पास कुछ डेटा है जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ब्रिटिश के आने से पहले तालुकदार्स जो है अवध में उनके पास 67% ऑफ द विलेज का कंट्रोल था। ठीक है, यानी बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश तालुकदार हैड अराउंड कंट्रोल ऑफ 67% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन अवध। बट समरी सेटलमेंट आने के बाद वो सिर्फ 38% रह गया था। जहां पे भी वो कोशिश कर रहे थे कि हम हटा सके तालुकदार को, उन्होंने हटा दिया। अब तालुकदार जो सदर्न अवध के थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा, बिकॉज हमारे पास डेटा है कि लगभग 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जो विलेजेस थी उनके पास वो उनसे निकल गई, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस उनके कंट्रोल में थी उससे ऑलमोस्ट 50% जो है वो ब्रिटिश ने उनसे अपने कंट्रोल में ले ली। ठीक है, अब जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स है, जैसे कि मैंने बोला, वो ये मानते थे, दे बिलीव दैट कि अगर हम तालुकदार को हटा देंगे तो एक्चुअल ओनर्स जो है, जो कि कल्टीवेशन करते हैं, एक्चुअल ओनर्स ऑफ सॉइल या फिर जो कल्टीवेटर्स है, उनसे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे। तो जब हम उनसे डायरेक्टली टैक्स लेंगे तो क्या होगा, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएरी कोई नहीं होगा जो उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम पढ़ेंगे क्यों। इसके साथ साथ ब्रिटिश ये भी सोच रहे थे कि इससे क्या हो जाएगा, हमारे रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलेगा रेवेन्यू, जो ओनर्स हैं सॉइल वाले उनसे। यानी 2 पॉइंट्स बोले इन्होंने बोला हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो जो एक्सप्लॉयटेशन का लेवल कम हो जाएगा पेजेंट्स का, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट रेवेन्यू देंगे, और हमारा भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रेवेन्यू आ रहा है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी कोई नहीं है, ये तालुकदार जमींदार कोई नहीं है। तो बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। क्यों? सबसे पहले तो ब्रिटिश जो है उन्होंने रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा हाई रखी थी, जो कि पीजेंट्स के लिए बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ऊपर से क्या हो, इसका भी इन्होंने हमें डेटा दिया है कि जो रेवेन्यू डिमांड है किसी किसी जगह में 30 से 70% बढ़ गया था। जस्ट इमेजिन, फ्रॉम 30 to 70% जो उनसे रेवेन्यू डिमांड किया जाता था वो इतना ज्यादा हाई रेट पे बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने उसकी कैलकुलेशंस ही ऐसे की थी ब्रिटिश ने।
उसके अलावा जो पीजेंट्स थे वो इस चीज से खुश नहीं थे कि ताल्लुकदार को हटा दिया गया है। ब्रिटिश तो बोल रहे थे हम आपको बचा रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि ताल्लुकदार जो है कहीं कहीं हो सकता है एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बट जो इतने सालों से पूरा पूरा सोशल ऑर्डर चल रहा था ना, इसके कारण पीजेंट जो है वो अपने ताल्लुकदार की तरफ बहुत लॉयल थे और बहुत बार ताल्लुकदार उनको हेल्प भी करते थे। जब उनकी कंडीशन खराब होती थी, हार्वेस्ट खराब होता था या और कोई प्रॉब्लम होती थी, तो ताल्लुकदार उनकी बात समझते थे, उनको कुछ टाइम दे देते थे, उनको हेल्प करते थे, कभी रेवेन्यू माफ कर देंगे, कभी कम कर देंगे, कभी उनकी बात सुनेंगे, कभी हेल्प कर देंगे। ठीक है, पर अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन प्री ब्रिटिश टाइम में तो कभी कभी लोग, कुछ ताल्लुकदार इतने जेनरस और इतने अच्छे थे कि लोग उनको फादर फिगर जैसा मानते थे, कि वो ध्यान रखते हैं और वो हमेशा जब भी जरूरत होती थी पीजेंट का उस हिसाब से उनको हेल्प करते थे। पर जैसे कि मैंने बोला, ब्रिटिश ने पहले तो टैक्सेस इतने बढ़ा दिए थे और इतने ज्यादा इनफ्लेक्सिबल थे वो, मतलब हमें आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। वी डू नॉट हैव एनी यू कैन से कंसिडरेशन कि आपकी हार्वेस्ट खराब है या आप अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी मांग रहे हो, नहीं, बिकॉज they were foreigners and they did not have any kind of sympathy or attachment with the Indians, जो कि ताल्लुकदार के साथ था पीजेंट्स का। तो इसीलिए ये बोल रहे थे कि जो ब्रिटिश है वो ना रिड्यूस करते हैं ना पोस्टपोन करते हैं रेवेन्यू को, और एकदम स्ट्रिक्ट और इनफ्लेक्सिबल इनका रेवेन्यू सिस्टम है। तो ये बोल रहे हैं कि वी एक्चुअली डू नॉट लाइक वॉट एवर हैज बीन डन। इवन ताल्लुकदार जरूरत के टाइम पे उनको पैसे भी देते थे, फेस्टिवल्स के टाइम पे भी उनको अगर जरूरत होती थी हेल्प करते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता था। ब्रिटिश तो एकदम ही नहीं सुनते थे और ना पोस्टपोन करते थे ना रेवेन्यू, अगर हार्वेस्ट खराब होती है तो उसको ना रेवेन्यू रिड्यूस करते थे, ना थोड़ा टाइम देते थे, ना कुछ भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो इसीलिए जो अवध है वहां पे लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे थे ये फिरंगी राज को, और ताल्लुकदार और पीजेंट साथ हो गए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। और ताल्लुकदार जो है, लोग ताल्लुकदार के भी लॉयल थे, नवाब के भी लॉयल थे, और जो ताल्लुकदार है वो नवाब के भी लॉयल थे। तो जब नवाब ऑफ अवध को हटा दिया गया तो सारे के सारे जो है वो बेगम हजरत महल के साथ जाके मिल गए। मतलब जो वाइफ ऑफ नवाब है बेगम हजरत महल, उनके साथ उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या करें, फाइट करें और वापस से अपना पुराना वाला सिस्टम लेके आए। कुछ लोग तो इवन जब वो हार गए थे बेगम हजरत महल आफ्टर द फाइट विद ब्रिटिश, फिर भी वो उनके साथ ही थे बिकॉज वो बहुत लॉयल थे। यानी एवरीथिंग इज समवेयर हियर रिवॉल्विंग अराउंड द चेंजेस दैट द ब्रिटिश हैड ब्रॉट। जो पीजेंट्स की दुख थे या जो पीजेंट्स की प्रॉब्लम थी वो हम बोलेंगे यहाँ पे, इसके साथ साथ सिपॉइज को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। हमने पढ़ा था सिपॉइज जो है वो ज्यादातर अवध से ही आ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि पहले तो हम ये नोटिस करेंगे कि सिपॉइज जो है उनको अच्छी तरीके से रखा जा रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे 1850s के बाद क्या हुआ, उनकी पेमेंट भी कम हो गई और उनको वर्क छोड़ने भी नहीं देते थे, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट भी नहीं थी, और 1850s से सिपॉय थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो गए थे। क्योंकि हम ये देखेंगे जो सिपॉयज है, पहले क्या होता था, मतलब ये जो 1850s 57 से पहले 1820s के अराउंड व्हाइट ऑफिसर्स जो है वो सिपॉयज के साथ हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखते थे। ठीक है, और ये जो फ्रेंडली रिलेशन बना के रखते थे इसमें ये इनके साथ मिलके लेजर टाइम एक्टिविटीज करते थे, गेम्स खेलते थे, रेसल करते थे और आपस में रहते थे, बातें बातें करते थे। बिकॉज जो वाइट पीपल है वो इंडिया के कस्टम्स और कल्चर को जानना चाहते थे।
ठीक है। और ऐसे लगता था कि मतलब उनको ठीक है डिसिप्लिन भी करते थे, पर उनको बहुत अच्छी तरीके से समवेयर रखते थे विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। पर ये चेंज आने लग गया 1840 से। 1840 से क्या चेंज आने लग गया, जो ऑफिसर्स है वो अब सोचते थे हम सुपीरियर हैं और जो इंडियन है वो इंफीरियर है। डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए थे, और खुद को वो लोग मानते थे कि हम ऊपर हैं, और जो इंडिया वाले हैं, इंडिया के जो सिपाही हैं वो अच्छे नहीं हैं, और जो इंडिया के सिपाही हैं वो क्या है, मतलब वो हमारे इक्वल नहीं है, हम उनको इक्वल नहीं मान सकते। ठीक है। और धीरे धीरे अब्यूज स्टार्ट हो गया, उनके अगेंस्ट फिजिकल वायलेंस हो गया, और सिपाहीज को अलग रखा जाता था, ऑफिसर्स को अलग रखा जाता था। ऑफिसर्स और सिपाहीज जो है एक दूसरे को हमेशा शक की नजरों से देखते थे। और वही इसीलिए ही जब वो कार्ट्रिज वाली बात आई, ग्रीस कार्ट्रिज वाली, तो ब्रिटिश के बोलने पे भी इंडियंस ने उन पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या डेवलप हो गया था, सस्पिशन एक दूसरे के अगेंस्ट। तो हमें ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि सारे सेक्शन जो है अवध में वो डिससेटिस्फाइड थे इससे। ये एक और हमारे लिए इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि सिपाहीज जो है वो रूरल एरियाज, विलेजेस से ही आए थे नॉर्थ इंडिया के। और मैंने आपको बताया था अवध में से बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता था। अगर आप मानो बंगाल आर्मी में तो ज्यादातर जो लोग हैं वो अवध और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से ही होते थे, और ज्यादातर इनमें से अपर कास्ट ब्राह्मण्स ही होते थे। अवध में से इतने सोल्जर लेके जाते थे कि अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया है इसको, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अब हम देखेंगे कि जो चेंजेस इस टाइम पे आए थे, सिपाहीज ने देखा था, सिर्फ सिपाहीज के साथ वो देख रहे हैं जो पीजेंट्स उनके साथ अटैच्ड है उनकी भी हालत खराब है, और उनको ये लग रहा है कि ब्रिटिश जो है हर सेक्शन पे अटैक कर रहे हैं। उसके बाद ये एक नई कार्ट्रिज वाला केस आ गया। लोग जो है धीरे धीरे सोच रहे थे कि हम कैसे ब्रिटिश जो है इनके अगेंस्ट जाए, और ये लोग जो है पूरे ही चेंज हो गए हैं। मतलब हम अगर पहले की भी बात करें, हम आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ये ब्रिटिश है ये किस हिसाब से अब इनसे डील करते थे। पहले तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत इंफीरियर माना जाता था, पर अब इस तरीके से रेशियल अब्यूज हो रहा है, मिसबिहेवियर हो रहा है। और अगर हम देखें कि लोग जो है हर जगह पे यही बात कर रहे थे एक दूसरे से कि जो ब्रिटिश है दे आर नॉट ट्रीटिंग इंडियंस इन अ करेक्ट वे। अब जो ब्रिटिश है उन्होंने कोशिश की थी ये चीज समझाने की कि नहीं, हमारा कार्ट्रिज वाली बात नहीं है, एंड चीजें जो है इट शुड नॉट बी दिस, यू ऑल शुड बिलीव अस दिस दैट। बट क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, र्यूमर्स ऐसे फैल रहे थे, प्रोफेसीज ऐसी थी कि लोग अब ये बोल रहे थे कि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, कहीं ना कहीं एक अपराइजिंग करनी ही पड़ेगी ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इसीलिए ये जो सिपाहीज हैं, गांव वाले लोग हैं, ये सारे एक साथ हो गए थे। और जब भी सुपीरियर ऑफिसर्स इनको कुछ ऑर्डर बोलते थे, और स्पेशली जब इनको ये बोला था कि आप ये जो बुलेट्स हैं ये यूज करो, तब साफ साफ सिपाहीज ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और ये लोग सारे विलेजेस में जाके इन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट कर दी, और पीजेंट्स जो है उन्होंने भी इसमें ज्वाइन किया। जहां पे भी मतलब सिपाहीज गांव में जाके सपोर्ट कर रहे हैं, गांव वाले टाउन्स में आ रहे हैं, सोल्जर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो ऑर्डिनरी पीपल है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो हियर वी सी दैट
हमने इसमें पूरी अवध की स्टोरी पढ़ी है कि कैसे नवाब वाजिद अली शाह जो है उनको हटाया गया और लोग जो है उससे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे, पूरा सिस्टम खराब हो गया था, लोग इस चीज से खुश नहीं थे, सिपॉयज भी ज्यादातर यहीं के थे और इनको भी लग रहा था ब्रिटिश जो है अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे के सपोर्ट में सारे सेक्शंस आ गए थे, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे सिपॉयज हो, चाहे ऑर्डिनरी पीपल हो, और भी जितने भी थे सारे मिलके इस रिबेलियन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए ही हम बोलते हैं कि जो अवध है वहां पे ये जो रिबेलियन है ये बहुत बड़े फॉर्म में था और बहुत टाइम तक चला भी था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस a box that is given in book on your page number 299. इसमें लिखा है what the तालुकदार thought। तो जो तालुकदार है यहाँ पे उनकी क्या सोच थी ये देख लेते। So now the attitude of Talukdars was expressed through these lines. We'll study them. It was expressed by Hanwant Singh, the Raja of Kala Kankar near रायबरेली। ठीक है, तो इन्होंने बोला पूरे म्यूटनी के टाइम ये जो हनवंत सिंह है इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को शेल्टर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लग रहा था कि जो सिपॉयज है वो उन पे पूरा बुरी तरीके से अटैक करेंगे, तो उनके पास हेल्प के लिए आए थे कि हमें सेफ्टी के लिए आप अपने पास रख लो, तो उन्होंने रखा भी था उनको। तो अब जब टेकिंग लीव ऑफ द ऑफिसर, अब हनवंत सिंह ने उनको बोला जब ऑफिसर जा रहे थे तब कि साहिब योर कंट्रीमैन केम इन टू आवर कंट्री, आपके लोग हमारी कंट्री में आए, हमारे राजा को यहाँ से भगा दिया, आपने अपने ऑफिसर्स को भेजा पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए कि कौन से एस्टेट के पास, मतलब कौन से तालुकदार के पास कौन सा एस्टेट है, और उनके टाइटल्स के लिए एक ही ब्लो में आपने सारा लैंड हमसे ले लिया जो इतने सालों से हमारी फैमिली के पास हमारे पास था, फिर भी हमने आपकी बात मान ली। सडनली आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गई और आप जो है, क्योंकि हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो आपके खिलाफ अब उन्होंने आवाज उठा ली, तब आप मेरे पास आए थे कि आपको बचा लिया जाए। ठीक है, मैंने आपको सेव भी किया, आई हेल्प यू, बट अब मैं उन लोगों के साथ जा रहा हूँ एंड आई मार्च एट द हेड ऑफ माई डिटेनर्स टू लखनऊ टू ट्राई, अब मैं लखनऊ जाऊंगा और हेल्प करूंगा मेरे लोगों की, ताकि हम आपको अपनी कंट्री से बाहर निकाल सकें। So this is again one of the, you can say, expression या एक तरीका है जिससे कि तालुकदार has told us, expressed that what was happening during this time। ठीक है, so with this we have an idea कि अवध में क्या हुआ था। In our next class we will study that what the rebels actually wanted, जो कि हमें बहुत क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये लोग ज्यादातर इलिटरेट थे, इतना ज्यादा इन्होंने लिखा नहीं था, तो हमें कुछ कुछ चीजों से इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी that what the rebels wanted, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, विजन ऑफ यूनिटी और लोग ब्रिटिश से कैसे डिससेटिस्फाइड थे, ये वाली चीजें, एंड देन फ्यू सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन कि ब्रिटिश किस तरीके से ऑपरेस कर रहे थे अपने को। देन वी विल सी, अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि हम कैसे ब्रिटिश, हम कैसे जीत रहे हैं, हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बट नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी दैट कैसे ब्रिटिश ने फाइनली रिप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को और क्या क्या हुआ था। एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच विल बी आवर इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, वेयर विल सी हाउ द ब्रिटिश showed the Indian sepoys, and we will also see how the Indian जो भी लीडर्स थे रिबेलियन के उनको कैसे डिपिक्ट किया गया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी in our next few classes. So I suppose जितना हमने किया है must be clear to you people. If you have any doubt relating to whatever we have done, just come back with your doubts, we'll discuss and solve it. So meet you all in the next class now.